No, I think we have posted the n number of transactions. Correct. How many transactions we have posted under the FB50? Let me check. Let me check. Just 1 minute. I will go to the FS00. Okay. And under the FS00, what's my company code? DN10. DN10 is my company code. Within this company code, we have created the Canara Bank. Correct. This is my bank account. Second is my under the indirect expenses, we have the printing and stationery GL account. Then we have the raw material purchase raw material account here. Okay. So these are the GL account we have created, and in between we have created the reserve and surplus account as a retained earning account. Correct. This GL we have created. After that, what we have done, we have posed the transactions. We have posed the transactions using the T code of FB50 and the path are SAP menu, accounting, financial accounting, general ledger, document entry, and under the document entry here you have the options as a FB50, okay, F-02 and FB01L. Okay, so we have posted the transactions using the T code as a FB50. I'll post one more transactions here for your understanding and for your recap. I'll post the transactions here. Okay, so I'll post the transactions using the T code as FB50. So how I will post it? I will double click on FB50. Okay, इथपर्यंत आलं होतं ना मॅडम आपलं? Okay, so I'll post today's date 31st 12 31st October. Okay, then the text will be, this is my bill number, then the GL account will be debit for purchase raw material. Okay, so here you have the options as a whether it's a debit or credit. So it's a debit, then the amount are say 16,500. Okay, and then the text will be as a purchase raw material. Correct. Okay, sorry. Purchase raw material. Correct. Then this is my debit side and credit will be either cash or bank. Okay, we have the Canara Bank here. Say Canara Bank. Then this will be credit. Amount will be 16,500. Okay, and then the value dates are mandatory. Value dates are mandatory. So I will take the value dates are today's value date here. Right, and then the text will be here as a purchase raw material. Correct. Then I'll have to validate the data. How I will validate the data? I'll put the enter. Then you can see here my total debit will be 16,500 and total credit will be 16,500. Okay. Up to this stage, anyone have the doubt? Ruchira madam, up to this stage, do you have any doubt? यहां तक के तो हमने किया था लास्ट लेक्चर में. करेक्ट. प्रतीक, हेलो. Pratik, is it okay? Yes, sir. Is it okay? Okay, Kanchan madam, we have done up to this stage. Correct? We have done up to this stage. Yes, okay. And then I will simulate the data. I'll simulate. And then this is my entry overview. I can see my entry overview here. The document number yet to be generated. Company code will be DN10. Fiscal year will be 2022. Document date, posting date, periods, and this is all everything has been comes out. Okay. For example,
This is my entry. I have a doubt. Okay, so the amount are wrong. In that case, what I can do? In that case, I will not post the entry. I will park the entry. That we have done it or not done? We have done. पार्क हमने किया था क्या? नहीं किया था ना. Okay, so how I will park the entry? You can write down the next step as a how to park the entry. How to park the entry? Park means what? If the entries are not sure, if the entries are not sure or amount are wrong, amount wrong, GL account wrong, okay, dates are wrong, or the bill numbers are wrong, or the bill numbers are wrong mentioned in voucher. हम लोग वाउचर बनाते हैं ना, तो इसमें कुछ भी एरर हो सकता है. तो हमने इतना तो काम किया उसके ऊपर, इतना तो हमने काम कर दिया. तो हम इसको अगर गलत हो गया तो क्या करेंगे? वापस जाएंगे, वापस हमारे को काम करना पड़ेगा. तो वापस क्यों करें हम लोग काम? हम लोग क्या करेंगे? इसको पार्क कर देंगे. पार्क. सो यू हैव द ऑप्शंस हियर द पार्क डॉक्यूमेंट. सो पार्क डॉक्यूमेंट मींस व्हाट? क्या होगा? इसका इफेक्ट जीएल को जाएगा नहीं, ये साइड में रुक जाएगा. ओके, so if I'll open the another sessions and if I'll go to the T was FBL3N, okay, FBL3N. So this is my company code, and if I'll execute, so this is my existing entry है ये. Okay, अब ये मैं एंट्री को पोस्ट नहीं करता हूँ, उसको पार्क करता हूँ. तो पार्क करूंगा तो डॉक्यूमेंट नंबर तो जनरेट होगा उसमें. ओके, सो इफ आई पार्क, you can write down, enter the normal transactions, enter the normal transactions, enter the normal transactions, then instead of post you have the option here, the park document. Instead of post the document, you have the options here, the park document. So click on the park document, click on the park document. Then you will get the message. What message you will get? Document 4 DN10 was parked. Okay, if you got this message, DN10 document was parked, तो डॉक्यूमेंट तो पार्क हो गया. अब इसका इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो मुझे कैसे पता चलेगा? ओके, आई विल गो हियर. रिकॉर्डिंग चालू किया ना हमने? कंचन मैडम रिकॉर्डिंग चालू है ना? Yes, sir. Yes, yes. Okay, so I'll get the message here as a document DN10 was parked. चलो पार्क तो कर दिया हमने. पार्क होने के बाद में हमारे को उसका रेक्टिफिकेशन करने का है. सो हाउ आई विल रेक्टिफाई? जो भी हमारा गलत हुआ है, एडिटिंग ऑप्शन, no editing option here in this option, in this area you don't have these options. Okay, so you can write down the next step here as a how to post park document. How to post park document. Okay, and the T code are FBV0. T code are FBV0. I'll write down T code FBV0. FBV0. Okay, and the path you can write down the path as a SAP menu. SAP menu. Accounting.
financial accounting, then general ledger, then document entry, sorry, under the general ledger, financial accounting, general ledger, then you have the document. Under the document, here you have the option as a park document. And under the park document, see, these are the T code. FV0 for post or delete, FV50 for post oblique delete single screen transactions, FV50L for process GL account document for general ledger, FBV2 for change, FB50 for change, FBV3 for display. So you can have all this T code here. Okay. If you want to write down, then you can write down. Otherwise, you can refer the recording sessions. It will be available to you. Okay. No need to write. Suppose I want to post the document. Okay. So I will double click on FBV0. Okay. And my system asks me the post park document initial screen. Okay. So you have to, right now just we have park and then we are editing. So systems by default take this number. Okay. Otherwise, in your day-to-day business, if you are parking 10 documents, then you will have to get the document number or you will get the document list here. Systems will give the document list here. Okay. So how you will get the document? For example, I don't know. Okay. I will get the document. So I'll click the document list here. Then system asks me the company code. Enter the company code DN10. Fiscal years as 2022. Okay. If you know the document number from and to, we have the document range number 12999 as my journal voucher enter. Okay. So you can have this posting date, कब आपने पोस्ट किया. फॉर एग्जाम्पल कल का भी आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है पार्क में पड़ा हुआ, 2 दिन का भी हो सकता है. तो स्पेसिफिक रेंज आप यहाँ पे दे सकते हैं उसको. पोस्ट डॉक्यूमेंट डेट है आपके पास में तो वो दे दो. डॉक्यूमेंट टाइप, सी SAP आर प्रोवाइडिंग दिस डॉक्यूमेंट टाइप. इसमें से आपका जर्नल वाउचर है तो आपको AB में क्लिक करना है. आपका कस्टमर रिलेटेड है तो आपको DA, DR, DJ. So SAP is providing everything here. Okay. So I will click the AB document here. Okay. And the posting date 10104. मैं क्या करूँगा, पूरा उसको दे दूंगा आज तक 2022. Okay. Enter. Then you can have the parameters. यहाँ पे देखो सिस्टम ने इतना आपको ऑप्शन देके रखा है. आपको जो भी क्राइटेरिया लगता है कि ये इसके हिसाब से मेरे को सर्च करने का है, सो यू कैन फिल द डाटा. इट्स अ फ्लेक्सिबल है ना ये. आपको कुछ प्रोग्रामिंग करना पड़ रहा है कि इसमें आपको क्या पता है वो आपको डालने का है. सो आई विल से एग्जीक्यूट हियर. नो. ओके. यहाँ पे शायद ऐसे डालना पड़ेगा. करेक्ट. सी है ना, एक एंट्री पार्क में पड़ा हुआ. ऐसा आपको पूरा लिस्ट का लिस्ट आ जाएगा आपको. तो उसमें से आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चेंज करने का है, ये मुझे DN10 ये डॉक्यूमेंट चेंज करने का है. सो आई विल डबल क्लिक. सो दिस इज योर एंट्री. आपके सामने आ गया. वो आपको क्या चेंज करने का है, इसमें अमाउंट चेंज करने का है, अमाउंट चेंज कर दो. यू कैन चेंज इन पार्क डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट डेट के यू कैन चेंज, पोस्टिंग डेट यू कैन चेंज, डॉक्यूमेंट नंबर यू कैन नॉट चेंज. इट्स अ फिक्स. एक बार सिस्टम ने देखो यहाँ पे आप ट्राई करके देखें. नो, इट्स अ डिसेबल. करेक्ट. यू कैन चेंज द डॉक्यूमेंट हेडर डेट, ये आप चेंज कर सकते हैं. GL नंबर आप चेंज, फॉर एग्जांपल मेरा GL नंबर गलत हो गया था, वो स्टेशनरी था, चलो स्टेशनरी डाल दो उसमें. ठीक है. अमाउंट
गलत हो गया था, 16,500 नहीं था, वो 15,500 ही था। ठीक है, 15,500 कर दिया हमने, कोई बात नहीं, 15,500 कर दिया। ठीक है, अब हम लोग इसको सेव करने का ट्राई करेंगे। पोस्ट अकाउंट चेंज आइटम चेक, ओके ठीक है, इंफॉर्मेशन, बट लेगा क्या वो, पोस्टिंग ओनली पॉसिबल विथ 0 बैलेंस। आइदर देखो यहाँ पे सिग्नल कौन सा आ गया, रेड आ गया है ना, डेबिट में 15,500 है, क्रेडिट में 16,500 है। So as per my accounting policy, this entry is not acceptable in SAP. So how I will change? You can change either this amount or this amount. So I will change this amount here. Okay, 15,500. Then you can see here, once you enter and then you can validate the data, the systems will change the color here. Okay, green means okay, and then you can have the post options here. Is it clear, Arif? Kanchan madam, is it clear? So in a park document, you can change Yes, the document date, you can change the posting date, you can change the GL account number, you can change the amount, you can change the text also. Correct? And then can I post, or you want to write down? If you want to write down, then you can write it down. As per your own language. मराठी में लिखा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में लिखना चाहिए। Please confirm me if you are done. Okay, so if I want to post, then you can have the options here, the post. If I'll post, then the systems will post the transactions or use the effect to the respective GL account. Okay, so I'll post it. And then again, I will get the message
Document 4 was posted in company code DN10. Okay, so yes, it's okay. And if I refresh, okay, if I refresh here, you can see today's date, the document are posted here. After I change, the document have posted with a revised amount here. Revised amount. Before that, we have given the GL account as a purchase raw material, but in the park stage, we have changed the GL account here also. So we have changed this GL account and the amount. So like this, if you in a regular base also, if you have some doubt in voucher or at the time of entering the transactions in the systems in SAP, then you can use this process. तो क्या आप कितना भी पार्क कर सकते हो। तो जब भी कोई इनिशियल स्टेज में जब कोई एंड यूजर ज्वाइन होता है तो उसको डायरेक्ट पोस्ट का राइट नहीं दिया जाता है, उसको बोलते हैं तो पार्क कर, मैं चेक करके उसको पोस्ट करूंगा। क्योंकि एक बार आपने पोस्ट कर दिया फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, बराबर है ना। लर्नर को तो वैसे ही करना पड़ता है। वंस यू आर इन द फैमिलियर इन SAP इन स्क्रीन, देन विल गिव यू आफ्टर 1 year, 1 साल के बाद मिलता है वो, ऐसा इमीडिएट नहीं मिलता है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, चलो हमने ये एंट्री पोस्ट कर दिया, अब ये एंट्री भी गलत हो गया हमारा, अब क्या करेंगे हम लोग। अब उसको चेंज तो नहीं कर सकते हैं, पार्क में तो आप कितनी बार उसको चेंज करो, कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर पार्क में नहीं, अभी इसका GL में इफेक्ट आ गया, अब ये एंट्री हमारा गलत हो गया, ये 15,500 नहीं था, ये 25,500 है। उसने गलती से वाउचर के ऊपर 15,500 लिख दिया था। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हमारे को रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, सो राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप हियर एज अ हाउ टू रिवर्स द डॉक्यूमेंट, हाउ टू रिवर्स द डॉक्यूमेंट। Okay, how to reverse the document. To reverse the document, the T code are FB08. FB08. 08. Okay, FB08, and the path are SAP menu. SAP menu. Accounting. Financial accounting. General ledger. General ledger. Okay, under the general ledger, here you have the options as a reverse. Okay, under the general ledger we have document, and under the document here you have the options as the reverse. The reverse, and then you can have the T code here as FB08. 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 Okay, so my original screens, my original will be this entry here, the 15,500. Okay, so this entry is wrong. So if I want to reverse the document, then this is the path, this is the T code FB08. ओके, दिस इज इंडिविजुअल रिवर्सल। अगर आपको एक एंट्री रिवर्स करने का है तो आपको FB08 यूज करना पड़ेगा। अगर आपको 100 एंट्री रिवर्स करने का है तो यू हैव द ऑप्शन F.80 मास रिवर्सल। 100 एंट्री गलत हो गया तो एक एक एंट्री थोड़े ना हम लोग रिवर्स करते बैठेंगे, हम लोग 100 का 100 एंट्री रिवर्स कर देंगे, मास रिवर्सल। सो डबल क्लिक ऑन FB08, डबल क्लिक ऑन FB08. Correct? Then my system asked me the document number. So from where I will get the document number? From GL account.
So this is my document number 4th. Correct. So systems requires the document number. Enter the document number as of 4 here. Company code DN10. Fiscal year 2022. Reversal reason. Why you are reversing? Why आप reverse क्यों कर रहे हैं? So you can have the possible fields here, or you can create your own reason. वो भी कर सकते हैं आप. Okay. So I'm not going to create my own reason. So I will say here as a reversal incorrect document date. Okay. Incorrect document date. Posting date क्या है उसका? आज का posting date है 31 है. ओके. देन पोस्टिंग पीरियड क्या है? क्या है पोस्टिंग पीरियड? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. अक्टूबर है ना? अक्टूबर विल बी 7th or 8th? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. 7th. Okay, 7. Okay, this data required. Note down this data. Which document you want to reverse? Document number 4. My company code will be DN10. My fiscal year will be 2022. Reversal reason will be here. You have the list here. Either 01 or you can give anyone here. Incorrect document date or reverse in current period. You can give anyone here. I am giving 7th here. Then the posting date for document date. Document कब हमने post किया है? 31/10/2022. Done. And then you want to see the document before display. You can have the option here, the display before reversal. Okay. This is my document number. This is my document, printing a stationery account debit to Canara Bank account credit. So this is the company code, item 1, posting key 40 for debit, GL account number 28,000, debit. This is the plus here, and then 50 for what? 50 for credit, GL account number 18,000, Canara Bank. This is a minus. In SAP, wherever you will get credit, it will be minus here. Correct? Okay, this document is okay. If you want to double click here, then you can double click. You will get in between, inside the document, inside the screens here. Okay, if you want to see the display document here, then you can have the all technical data here. Document type ऐसे header ये है, document date this was 31/12, posting date 31/12. This is the currency, this is the table BKPF, this is a technical reference number, this is also technical log, and then you can see here who has entered, SAP user, who has parked, SAP user, entry date, this one, and the T code are FBDP. Okay, so this is all the technical data. Okay. Okay, this is okay. I confirm. Okay, then go back. Oh, sorry. हो गया हमारा. Okay, then just you can save it. Click on the post here. Once you click on the post, my systems will generate the another document number.
You will get the message here, the document 5 was posted in company code DN10. अब मेरा GNV इफेक्ट क्या होगा इसका? मैंने डॉक्यूमेंट रिवर्स कर दिया, अभी क्या होगा? कैसा क्लियर हो गया वो? डेट चेंज की ना उसकी। डेट कहाँ चेंज किया हमने? डेट चेंज नहीं किया हमने। सो जहाँ पे हमने डेबिट दिया था वहाँ पे क्रेडिट गया, जहाँ पे क्रेडिट गया था वहाँ पे डेबिट गया. ओके, इफ आई विल गो टू हियर and if I'll refresh, okay, I'll go back and if I'll refresh, okay, कहाँ पे गया वो? हाँ, हमारे को ये देखना पड़ेगा ना, all items, see here you can see 15,500. यहाँ पे क्या है? माइनस है. 4 नंबर के डॉक्यूमेंट पे माइनस था ना कैनरा बैंक में, अब क्या हो गया? ये जीरो हो गया इसका इफेक्ट. क्लियरिंग डॉक्यूमेंट 4 डॉक्यूमेंट किसके अगेंस्ट में क्लियरिंग हुआ? 5 के अगेंस्ट में क्लियरिंग हुआ. तो कैनरा बैंक में से जो हमने माइनस किया था वो हमने प्लस कर दिया. ओके, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में हमने यहाँ पे प्लस किया था, उसको यहाँ पे हमने माइनस कर दिया. तो अल्टीमेटली 12,500 ही क्लोजिंग बैलेंस है हमारा. ऐसे ही होता है ना रिवर्सल, कांचन मैडम, ऐसे ही होता है ना रिवर्सल. आप ऐसा कितना भी एंट्री रिवर्स कर सकते हैं, बट सिस्टम में से एंट्री आप निकाल नहीं सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं आप. देयर इज नो डिलीटिंग ऑप्शंस इन SAP. तो अच्छा है ना? क्यों अच्छा है? गलती किया वो समझ. हाँ, सब कुछ समझता है इसमें. और कितना रिवर्सल करोगे आप? दिन में से 10 मारोगे और 8 रिवर्स करोगे क्या? ऐसा अगर रिवर्स करोगे तो क्या करेंगे? क्या बोलेगा कल? नौकरी छोड़ दो, आराम करो घर पे. बाकी एंट्री करने का राइट तो आपको है, रिवर्सल का राइट आपको है क्या? रिवर्सल का राइट आपको नहीं है ना. रिवर्सल का राइट तो मेरे को है. मैं चलो एक दिन एक्सेप्ट करूंगा, 2 दिन एक्सेप्ट करूंगा, तीसरे दिन बोलूंगा आप आराम करो. इसीलिए जब तक आप 100% श्योर नहीं है तब तक के एंट्री पोस्ट नहीं करना है SAP में. डाउट है आप पार करके रख दो उसको, है ना आपको ऑप्शंस. बट पोस्ट किया तो फिर प्रॉब्लम है. So like this you can post n number of transactions. If you have a doubt you can park the document. Once you clear the doubt you can change all the parameters, and then once you are sure 101% then you can post the transactions. ये टैली नहीं है, कितना भी एंट्री करो, कितना भी एंट्री डिलीट करो, किसी को पता नहीं चलेगा कितना एंट्री डिलीट किया, तो ऐसा नहीं होता है इसमें. सो द एंट्री विल बी रिटेन इन अ लॉन्ग लाइफ, 10 साल तक के रहेगा ये. तो कितना एंट्री कौन रिवर्स करता है ये सब पता चलता है इसमें. इसीलिए छुपाने की कोई बात नहीं रहती है. अगर गलत होता है तो भी वो एक्सेप्ट करो, हाइड मत करो. हाइड किया तो आज नहीं तो कल वो सामने आएगा ही आएगा. उस टाइम पे आपको आंसर देना मुश्किल हो जाएगा. इसे तो अभी गलत हो गया, इट्स अ ह्यूमन एरर. ठीक है ना? सो जो भी SAP में काम करते हैं वो लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. जो टैली में काम करते हैं वो बहुत हाइडेड होते हैं. सिंपल है, गलती हो गया, क्या करने का है? अभी सजा दो, कल के लिए हम लोग नहीं देखेंगे. कल और गलती होगा तो मैं एक बार अगर आपके पास में आऊंगा कि सर 4 गलती हुआ है, बोलेगा अब तक कि तुम क्या कर रहे थे. सो हाइड इज नॉट अलाउड. करेक्शन, केयरफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके काम करने का है, अकाउंटेबिलिटी से लेके काम करने का है. ये तो हमने एंड यूजर का देखा, हमारे को सब करने का है ना. कॉन्फ़िगरेशन भी करने का है, मास्टर डाटा भी मेंटेन करने का है, और हम कंसल्टेंट करके जॉब्स के लिए हम लोग सोच रहे हैं. बराबर है कि नहीं? हम एंड यूजर के लिए नहीं सोच रहे हैं. हम एंट्री किया, कितना घंटा, कितना 1 महीना हो गया ना हमारे को.
एक महीने में हमने आज ये 4 एंट्री पास किया हुआ है। टैली में तो हम लोग अभी इंस्टॉल करेंगे और अभी इसमें एंट्री पास कर देंगे। वो पॉसिबल है क्या यहाँ पे? नहीं पॉसिबल। ये तो सिर्फ एक चैप्टर है हमारा, ऐसे हमारे फाइनेंस के बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो हर एक का हमारे को कॉन्फ़िगरेशन करने का है, हर एक का हमारे को मास्टर डाटा मेंटेन करने का है, हर एक का हमारे को ट्रांजैक्शन मेंटेन करने का है, और हर एक का रिपोर्टिंग, ये रिपोर्ट ही है ना हमारा, करेक्ट। सो दिस इज द वे यू कैन पोस्ट द ट्रांजैक्शन इन सिस्टम्स। तो ये होगा हमारा पोस्ट एंट्री, करेक्ट। और देन पार्क एंट्री हो गया, रिवर्स कैसा करने का है वो भी होगा हमारे को। अब हम लोग ट्रेनिंग सर्वर में है, डेमो सर्वर में है, तो आप अभी कितना भी पार्क कर सकते हैं, कितना भी पोस्ट कर सकते हैं, कितना भी रिवर्स कर सकते हैं, बट रियल टाइम में अलाउड नहीं है। ओके, तो यू कैन राइट डाउन द टी कोड्स आर हियर एज अ, अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करने का है, द डिस्प्ले डॉक्यूमेंट FB03, FB03 टू डिस्प्ले द GL अकाउंट। मुझे अगर GL अकाउंट का बैलेंस देखने का है तो मेरा टी कोड क्या है? FB03, FB03। ओके, डिस्प्ले GL अकाउंट, एंटर करो यहाँ पे ओके, सिस्टम आपको डॉक्यूमेंट नंबर बताएगा। ओके, क्या डॉक्यूमेंट नंबर, कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर आपको देखने का है? मेरे को डॉक्यूमेंट नंबर 2 देखने का है। फिजिकल ईयर क्या है? 2022, इतना तो मुझे पता है। एंटर करो, ये आपके सामने आ गया 12,500। आपको क्या देखने का है इसमें? वापस जाओ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट हीडर में जाओ, आपको सब पता चले 21/9 को हमने किया है ये एंट्री। यू कैन सी द डॉक्यूमेंट हियर। ओके, यू कैन सी द डिस्प्ले डॉक्यूमेंट हियर, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट लाइन 1 ईयर। डॉक्यूमेंट अगर देखने का है हमारे को तो FB03, okay, FB03, correct. Then you can have the multiple options here. Then FS10N, FS10N, write down the one T code, FS10N, okay, FS10N, FS10N for view GL account balance, view GL account balance. Okay, if I entered here the T code as FS10N, then सिस्टम आस्क मी द अकाउंट नंबर। आपको कौन से अकाउंट का बैलेंस देखने का है? कौन से अकाउंट का बैलेंस देखने का है? मेरे पास में अकाउंट नंबर है ऑलरेडी। सी वी हैव द अकाउंट नंबर हियर, चार्ट ऑफ अकाउंट एज अ DN10, करेक्ट। इतने मेरे GL अकाउंट है, इसमें से मेरे को कौन सा GL कौन सा देखने का है? कैनरा बैंक का देखने का है। सो एंटर 18,000 हियर, नोट डाउन दिस वन, FS10N GL account balance display. Here you can have the options here, heading up GL account balance display. Okay, then execute, execute। ये देखिए, ये आपका GL अकाउंट बैलेंस है। ये अप्रैल में कुछ नहीं एंट्री किया हमने, 0 है यहाँ पे। मई में कुछ नहीं किया, 0 है। जून में कुछ नहीं किया, जुलाई में किया हमने एंट्री, एक क्रेडिट का एंट्री किया कैनरा बैंक को। ओके, देन अगस्त सितंबर में इतना किया हुआ है, और अक्टूबर में इतना किया हुआ है। सो दिस इज योर क्यूमुलेटिव बैलेंस ऑफ GL अकाउंट नंबर कैनरा बैंक लिमिटेड। तो ऐसा आप किसी का भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको डबल क्लिक करने का, यहाँ पर डबल क्लिक करिए आप, कितना बैलेंस है? ये आपका 2 GL अकाउंट है यहाँ कैनरा बैंक में, 25,500 इन द सेंस यू कैन से 25,500 कैसा है? तो ये दोनों का मिला के 25,500 है, ठीक है। 10,000 प्लस 15,500 इज 25,500, करेक्ट। सो change the GL account number here, change the GL account number here, and you can see the another GL account here as a chart of account DN10. Okay, you want to see the purchase raw material, okay, then execute. See, debit total closing balance is 16,500.
राइट, देन गो बैक फ्रॉम हियर। अगर आपको टी कोड नहीं देखने का है तो सी यू कैन सी हियर द अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग में क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, okay, then you can have the general ledger reports here. You can see all balance are there. Account balance you can see general, and then GL account का बैलेंस देखने का है, यहाँ पर क्लिक करो, GL account को क्या देखने का है, सो अकाउंट बैलेंस, चार्ट ऑफ अकाउंट पता है हमारे को, पता है ना क्या है, DN10 है, ओके, कंपनी कोड पता है, DN10 है, इसीलिए तो हम लोग स्टैंडर्ड रखते हैं, ओके। बाकी मुझे जीएल अकाउंट पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है मेरे को, मैं जस्ट एग्जीक्यूट कर दूंगा उसको। कैनरा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस इतना है, परचेस रॉ मटेरियल का डेबिट बैलेंस इतना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का डेबिट बैलेंस इतना है, डेबिट माइनस क्रेडिट, माय ट्रायल बैलेंस आर मैच। इज इट क्लियर? ओके, चलो ठीक है, ये एक रिपोर्ट हो गया। हमने क्या दिया इसको, सिर्फ कंपनी कोड चार्ट ऑफ अकाउंट ही दिया ना, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या चाहिए, कौन कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ पे आप दे सकते हैं उसको ना, मेरे को 10,000 से लेके, ओके, तो मेरे को 25,000 तक, ओके, हमारा 28,000 है ना वो, 28,000 इसमें से चाहिए, इसको एग्जीक्यूट कर दो, उतना ही आएगा ना। इसके बिटवीन में जितना भी जीएल का होगा सबका दिखा देगा आपको इसमें। हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में हर एक में 1000 का गैप रखा है ना, ठीक है। तो यू कैन सी, यू कैन हैव योर ऑप्शंस हियर, ओके। करेंसी, करेंसी टाइप आपको कहाँ से देखने का है, लेजर कौन सा देखने का है, कौन से पीरियड से लेके कौन से पीरियड से देखने का है, 1 से लेके 6 में बाय डिफॉल्ट देता है, अकाउंटिंग करेंसी क्या होना चाहिए आपको, सी दिस इज ऑल द, जो चाहिए वो आपको सिलेक्ट करने का है इसमें, करेक्ट है कि नहीं। गो बैक फ्रॉम हियर, यू कैन हैव दी, इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, कंपनी कोड दे दीजिए DN10, ओके, एग्जीक्यूट करके देख लीजिए क्या रिपोर्ट आता है सामने, वो तो पता चलेगा हमारे को। एनालिसिस तो हम बाद में करेंगे, जब हमारा टाइम टू टाइम हम लोग जो भी करेंगे करेंगे उसमें, ओके। ओके, चलो ये जनरल में टोटल एंड बैलेंस, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, चार्ट ऑफ अकाउंट DN10, कंपनी कोड DN10 दे दो यहाँ पे, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दो उसको, सी यू कैन सी दिस बैलेंस। 360 डिग्री आप कहीं से भी देखो, आपको एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं है तो मैं बैलेंस शीट कभी भी बना सकता हूँ ना, एनी मोमेंट। इसीलिए हम इसको रियल टाइम एसएपी बोलते हैं। रिपोर्ट कैसा है, रियल टाइम। टैली में हमारे को बैलेंस शीट होने के बाद भी हमारे 6 महीने हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं रहता है, बराबर है ना। अप्रैल में भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं लेकिन हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, क्योंकि हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया हुआ रहता है ना, हमने बैंक रिकंसिलिएशन नहीं हुआ रहता है, तो कैसा आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा। यहाँ पे ऐसा है क्या, जो भी है वो सामने है यहाँ पे, करेक्ट। ये आपको एक लेजर दिखाता हूँ मैं, कंपनी कोड जस्ट चेंज, मैं जस्ट आई एम चेंजिंग माई कंपनी कोड, मेरा ये कंपनी है, दूसरा कंपनी कोड मेरा MT10 है, MT10 है, MT01 है, ओके, MT01, ओके, यहाँ पे भी MT01 दे दूँ, MT01, ओके, एग्जीक्यूट कर दो उसको, से कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस है, बहुत सारा बैलेंस है, सबका बैलेंस है ना, ठीक है, देखिए, ओके, और ये मेरा सब कुछ मैच है यहाँ पे, एवरीथिंग हैज बीन मैच। 50-60 तो जीएल होगा,
होगा ना, 25 तो इसी में ही है, 25 तो इसी में है। सो यू कैन मेंटेन, इसमें भी हमने सेम ही किया हुआ है, 28,000 से लेके 28,999। So like this you can execute the reports, n number of reports, standard reports hai. We are not doing any programming here. We are a functional consultant, we are not a technical consultant. Correct, we are a functional consultant. So like this, if you want to share as a execute dn10, okay, enter, execute, no list है, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो नहीं है, not any issue. You can have your all balances here, correct. Line item, document, you want to see the general ledger, कौन सा आपको डॉक्यूमेंट देखने का है, यहाँ पे आप जाओ डॉक्यूमेंट जनरल में जाओ, दे दो उसको, सी एग्जीक्यूट, क्या हो गया, you select the document as one photo, otherwise the general document is incomplete. What is that? You should select the document as a, क्या हो गया, शायद डेट का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सॉल्व करना चाहिए हमारे को, ठीक है। लाइन आइटम जनरल DN10 fiscal year 2022, posting date 01/04/2022, 31/10/2022, एग्जीक्यूट, सी जो भी हमने एंट्री पास किया हुआ है वो सब यहाँ पे आ गया DN10 का। So like this you can have the multiple reports here, correct. So you can try yourself, correct, जितना आपको यहाँ पे दिखता है उतना सब ट्राई कर लीजिए आप। इसमें से अगर कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो मुझे बताइए, ओके। डॉक्यूमेंट है, मास्टर डाटा है, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है आपका, सब दिख जाता है यहाँ पे DN10। तो रिपोर्ट निकालने के लिए कहीं ज़्यादा घूमने का है क्या आपको, नहीं घूमने का है, यहाँ पे सब पैरामीटर जो चाहिए आपको पैरामीटर फिल करने का है और एग्जीक्यूट करेंगे, इतना ही किया है ना हमने। मुझे पता है करके मैं दिखा रहा हूँ, मुझे अगर पता ही नहीं तो मैं फिर उसको 2 घंटा जो 1 दिन लगा दूंगा, बराबर है कि नहीं। इसलिए सिस्टम में सब कुछ है वो आपको पता होना चाहिए। पता कैसे चलेगा, जब आप सिस्टम के साथ फैमिलियर हो जाओगे तब, नहीं तो नहीं। सिस्टम खुद करके कुछ बताएगा नहीं ना, सब कुछ तो है हमारे पास में, लेकिन हम साइड में देखते नहीं है तो पता नहीं चलेगा। आपको भी वैसे ही करना है, इसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है। हमारे को तो हम तो इसमें बेसिक पैरामीटर ही दे रहे हैं ना, और कुछ ज्यादा दे रहे हैं क्या, कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है। सो दिस इज द वे वी हैव कवर द जर्नल वाउचर पोस्टिंग विथ ऑल रिपोर्ट्स, okay. So yes, anyone have the doubt of these topics which we have covered it? Anyone have the doubt or anyone can ask me something about this topic which we have covered it? Then we have 5 minutes. Yes, Arif? प्रैक्टिस करने के बाद ही कोई आएगा आपको, हाँ डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस के लिए हाँ तो प्रैक्टिस आपको करने का है, मुझे नहीं करने का प्रैक्टिस। नहीं तो आप बोलेंगे सर समजला आज की चलो पार कर ले, तो ये सर तो आप ही को करने का है, तो आप ही को टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए। हाँ टाइम है तो अच्छी बात है, वो यूटिलाइजेशन होना चाहिए टाइम का, ठीक है।